اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شو اللہ کے نام پر جو بڑا مہمان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے جتنے سننے والے ہیں، چاہے میرے سے بڑے چھوٹے اور میرے بہن بھائی والدہ صاحبہ جس نے نہیں سننے ہیں، انہیں تہ دل سے السلام علیکم۔ آپ کا شکریہ کہ اس بیچ کو سننے کا اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اس بیچ سے اب اپنی لائف میں کچھ مزید تبدیلی لائیں، اور اس بیچ کا اصل کرنے کا وین میرا صرف یہ تھا کہ آپ لوگ ہمیں موٹیویشن آ جائے، آپ اپنے آپ سے موٹیویٹ ہو جائے، اپنے آپ سے ایک سکسیسفل مین کی تمنا رکھیں۔ یہ ہوتی ہے ہر مین میں، ہر وہ مین میں نے یہاں پر مرد کی بات کی، یہاں پر میں نے عورت اور مرد کی بات کی ہے۔ ہر آدمی میں ایک جنون بھرا ہوتا ہے، ہر انسان میں ایک جنون ہے، ایک ڈریم اس کے ہوتے ہیں، ہر انسان کے خواب ہوتے ہیں، پر اس کو حقیقت کرنے کے لیے اصل چیز موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے۔ صرف یہ وہاں سے آ سکتی ہے، موٹیویشن آپ لیتے ہو، اس کا فائدہ آپ چھوڑ دیتے ہو۔ موٹیویشن میں بھی لیتا ہوں، میری موٹیویشن میں اور آپ کی موٹیویشن میں آسمان زمین کا فرق ہو۔ اب کیسے؟ اب سوال جواب آپ کے ذہن میں سوال آ رہے ہوں گے کہ ہم بھی موٹیویشن لیتے ہیں، آپ بھی موٹیویشن لیتے ہیں اور سکسیسفل مین بھی لیتے ہیں، پر ہماری موٹیویشن میں کیا فرق ہے اور ان کی موٹیویشن میں کیا فرق ہے؟ فرق ہے موٹیویشن کے ساتھ آپ نے کوئی جذبہ ہونا چاہیے۔ موٹیویشن کا سمجھ جذبہ، اس جذبے سے طاری ہو جاتا ہے آٹومیٹک کام کی طرف رخ ہوا تو مطلب وہ موٹیویٹ ہو۔ ایک موٹیویشن ایک موٹیویٹ، اصل مسل ہمارا موٹیویشن سے آگے موٹیویٹ ہندوستان سمجھو موٹیویٹ جنون بھر گیا اس میں، سمجھو وہ سکسیسفل مین ہے، آج نہ تھے کل ہو جیسی۔ موٹیویشن کیوں ضروری ہے؟ موٹیویشن کا فائدہ کیا ہے اور کیوں لینی چاہیے اور کیوں آگے موٹیویشن لینی چاہیے؟ اس سے کیا ہماری لائف میں تبدیلی آ سکتی ہے؟ کیا ہماری اس تبدیلی کی وجہ سے کوئی نئی طریق، کوئی نیا ہمارا کام بن سکتا ہے، ہمارا ایک پہچان بن سکتی ہے؟ جی بالکل۔ شرط کیا ہے؟ موٹیویشن لے کے موٹیویٹ ہونا ہے۔ موٹیویشن تو ہر بندہ لیتا ہے، ٹیس کرنا بھی کیا کہلاتی ہے؟ موٹیویشن، نہ کہ تنگ ڈی موٹیویٹ۔ اس کو ہم نے اپنے یہ جو دماغ ہے اس کی پاور کو ہم نے چینج کرنا ہے، سوچنے کو چینج کرنا۔ جو ٹیس کرے بھائی سمجھو کہ اس نے موٹیویشن دی، اس نے کہا آپ نہیں کر سکتے، اس نے جھوٹا ثابت کرو، اس نے آپ کو جھوٹا ثابت کیا، آپ اسے ثابت کرو نا۔ آپ میں یہ جذبہ نہیں ہے، ہمارے تک بھی نہیں ہے، بڑے بڑے لوگوں میں نہیں تھا، پر انہوں نے لایا، موٹیویشن لے کے موٹیویٹ ہوئے، اور آج انہوں نے تاریخ میں اپنا نام بنایا، مشہور ناموں میں اپنا نام بنایا، اپنی پہچان بنائی، اپنا کام انہوں نے شو کیا، اپنے ٹیلنٹ کو۔ ٹیلنٹ بہت بڑی چیز ہے، جب تک آپ کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے، موٹیویشن کی کمی نہیں ہے، سہاروں سے بھی چیز ہوں گی،
मोटिवेशन पर लाखों लोगों ने मोटिवेशन पर बात की होगी, पर मैं यहाँ पर ये दावा करता कि मेरी स्पीच की वजह से बहुत बड़ी स्पीच होगी। पर मेरी कोशिश है कि स्पीच में वो बातें करूंगी जो आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर दे, और जो बातें मेरी लाइफ ने मुझे चेंज की वो बातें मैं बताऊंगा। और इसके अलावा जो लोगों की मेरे स्ट्रीम बड़ी लोगों से पूछी उनकी मोटिवेशन क्यों इतने ट्रैक में लगे, क्यों मेहनत कर रहे हैं, और क्यों अपनी लाइफ में ग्रो करने की कोशिश करते हैं, क्यों नए नए कदम उठाते हैं, नए नए स्टेप्स चलते हैं, नई नई सक्सेस की सीढ़ियां क्यों चढ़ते हैं, क्यों जरूरी है मोटिवेशन। आज इस बारे में स्पीच सारी मैं करूंगा। 5 to 10 मिनट की स्पीच होगी, और अभी शुरू करते हैं। इसमें बार के नाम पर जो बड़े मेहमान उन्हें आदर करने वाला। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद आसिम एंड फाउंडर ऑफ सुबेक। मोटिवेशन क्यों जरूरी है, आप क्यों मोटिवेट हुए, आपने क्यों इतने ब्रांड खोले, जैकमैन क्यों खोले, रोनाल्डो क्यों कामयाब हुए, सक्सेसफुल मैन क्यों कामयाब हुए, या फिल्म इंडस्ट्री के लोग क्यों कामयाब हुए, अपने टैलेंट को उन्होंने क्यों प्रमोट करना शुरू किया, किस वजह से कुछ लोगों ने माशरे को तब्दील किया, क्यों हमें मोटिवेशन बातें सुन के उस पर अमल करना चाहिए। आज तो सारे किताबें पढ़ी हैं मोटिवेशन पर, ना हम पढ़ते हैं, ना हम अपनी लाइफ को चेंज करते हैं, माइंड को नहीं चेंज करते। मोटिवेशन मैं भी सुनता हूँ, आप भी सुनते हैं, लाखों आदमी सुनते हैं, लाखों आदमी अपलोड करते हैं, पर क्या है, सिर्फ ज़हनियत को चेंज करना है, अपने माइंड को चेंज करना है। अच्छी सोच बेहतरीन जिंदगी है। आप अपने लाइफ में सक्सेस होना है, इस दिमाग में आपने ये नेगेटिव वाइब नहीं रखनी, अपनी आप जात के लिए तो रखनी नहीं है, दूसरे लोगों की जात के लिए भी नेगेटिव नहीं रखनी। आप मोटिवेशन पर बात करते हैं कि ये तो नहीं कि आपने अपनी लाइफ को अभी चेंज करना है तो आपने अपनी ज़हनियत को चेंज करना। मैं एक छोटी सी गांव में पैदा हुआ, छोटा सा कस्बा था और छोटा सा मोहल्ला था, 3-4 लोगों के घर होंगे वहां पर, और फिर मैं वहां साल दो उस घर में रहा। मैं 2 इयर्स का हुआ तो मैं वहां से आ गया और एक ऐसे मोहल्ले में आया जहां पर मोहल्ला तो था पर घर हमारा ही था, घर किसी का नहीं था, वो आबाद इलाका नहीं था, प्लेन इलाका था, जंगल था और जगह दरमियान में हमारा घर था। और मैं था तब 3 साल का, और मैं बचपन से ही एक बड़ी प्लानिंग करने वाला, बड़ी रकम में पैसे मांगने वाला था, और हमेशा मैं टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखा। मेरे अंकल, मेरे ग्रैंडफादर जब मुझे देखते तो मैं नई नई चीजें बनाना, वो जिस तरह करते मैं उन्हें कॉपी करके अपने सिस्टम बनाता। पर एक तो सबकी सोच होती है, पर एक खुदा की होती है, और किस्मत तो खुद बनानी पड़ती है, वो कदर अल्लाह के हाथ से मिलता है। और यही बात मेरी थी कि मुझे तो
5-7 ईयर में मुझे शौक लग गया प्लांट्स का। हमें ऐसे शौक लगा कि मुझे मैंने 6 साल का एक्सपीरियंस के बाद एक प्लेटफॉर्म में इंस्टीट्यूट खोल दिया। एक बड़े बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी कोशिश के बाद आसिम प्लांट शॉप खोल दिया। और भला क्या आसिम प्लांट शॉप ऐसे बन गया? क्या इसमें मुझे किसी ने टॉर्चर नहीं किया? क्या किसी ने मोटिवेशन नहीं दी? क्या मैं अपने उस करियर से पीछे हट गया? नहीं, बिल्कुल नहीं हटा। मैं कभी नहीं हटा। और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट था, अब भी इंटरेस्ट है। इन फ्यूचर आप कभी भी मुझे देख सकते हैं टेक्नोलॉजी में मजीद अपग्रेड होता हुआ। और मेरी जितनी क्लासेस होती है मैंने टेक्नोलॉजी की मदद से ऑनलाइन करी कि हमारे लोगों को शो रहा है टेक्नोलॉजी यूज कर सकें, ऑनलाइन चीजों को ज्यादा यूज करें। ऑफलाइन अब एक सर्विस हमें अता हुई है तो उसे हम भरपूर कोशिश से इस्तेमाल करें। क्या सिमरन शो वैसी बना? क्या सिमरन शो बोलने के लिए ऐसे बना? क्या कैसे बना? क्या ये जितने भी 3 प्लेटफॉर्म बने इंस्टीट्यूट आप कह सकते हैं वैसे बने, इसके पीछे मुझे तंग नहीं किया गया। क्या मेरी वीडियोस में मुझे टॉर्चर नहीं किया गया? क्या मैंने जो कंटेंट बनाया उसमें लोगों ने डीमोटिवेट नहीं किया? जी बिल्कुल, मुझे लोगों ने टीस भी किया, डीमोटिवेट भी किया और मुझे तंग भी किया मुश्किल में। मैं तो किसी को ब्लेम मैंने नहीं की, मैं खुद लगा रहा। फिर जब मैंने आसिम शॉप खोला तो काफी लोगों ने मेरे नाम रखे, पौधों वाला फलाना फलाना रखा, पर मैं खामोश रहा क्योंकि मैंने एक सक्सेसफुल मैन बनना था अपने ग्रैंडफादर की तरह। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत हर्डल देखी और एक छोटे से गांव से एक बड़े गांव में तब्दील हुए और बड़ी सोसाइटी में आए और बड़े लोगों के साथ बैठा उठा और अपनी लाइफ को चेंज किया। उन्होंने आज बड़े नाम शोहरत कमाई है। मेरा भी ख्वाब था एक नाम शोहरत कमाने का और लोगों से खास कर दुआ लेने का, अपने बहन भाइयों से, अपने जितने भी रिश्तेदार हैं। और ये मेरा ख्वाब रहा और मैंने मोटिवेशन मेरी वालदा ने दी है कि मेरे मामू ने मुझे दी। क्या बता, मैं उनकी डीमोटिवेट से मोटिवेशन से ज्यादा मैं ये टॉर्चर से मैं ज्यादा मुझे शौक पड़ा ज्यादा चीजें करने का, अपग्रेड करने का अपने आप को और अपने स्किल्स को। मैंने फिर ज्यादा इंटरेस्ट ले लिया पौधों में। अब मैंने कहा था तो पढ़ रही है, लाजिम बात है आसिम ब्रांड शॉप खोल दी, ऑनलाइन अकेडमी भी खोल दी। सफेद का अभी अभी दिन हुए हैं, 2 दिन नहीं खोली, पर सफेद के पीछे 5 to 6 मंथ की प्लानिंग चल रही है। इसे आप पहले भी कह सकते हैं 2 साल की मजीद प्लानिंग। उसमें नाम ये नहीं था सफेद का 4 to 5 मंथ से प्लानिंग चल रही है। इसके लोगोइज के फायदे सब चीजों पर हमने बात की और ये स्पीच मैंने काफी दिनों से प्लान की हुई थी, पर मेरे जो माइंड में जितने भी कुछ भी माइंड में नहीं है। अगर इस स्पीच में कोई भी चीज गलत हो जाए, हाँ माजरत। मैंने इस स्पीच अपने लाइफ के बारे में बात करनी, मैंने कितने हर्डल देखी, कितनी चीजें देखी जिसकी वजह से मैं आज लोगों की वजह से आज इस मुकाम पर खड़ा हूँ। अभी है अभी इतना अल्लाह ने तरक्की दे दी, नाम दे दिया, पर इंशाल्लाह इन फ्यूचर में बहुत बड़ा कोई काम करना है अपने पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए और अपने पीपल्स के लिए। अभी
مجھے لوگ یوں تانے دیتے تھے جب میں نے ایک موٹیویشن تو میری سوچ اچھی تھی، میں نے کہا یار کوئی اصل مقصد میں سوچی کہ نام تو میں نے پیسہ کمانا اور نام پیسے کے ساتھ عقل چھوٹ بھی دینی ہے میں نے لوگوں کو، اور ایسی عقل چھوٹ دینی ہے کہ ہر فیلڈ میں نام بڑھے اور ہر فیلڈ کو ہم گرو اپ کر سکیں، ہر فیلڈ کے بچے کو ہم موٹیویٹ کر کے ایک سکسیسفل مین بنا سکے۔ نیگیٹو میری وائف نہیں تھی، میں ماشاء اللہ ٹیم ممبر میرے جتنے بھی بہن بھائی ہیں میرے ٹیم ممبر میں انہوں کی سب ایک میں کوئی ذرا بھی نہیں ہے کوئی ایسی لالچ کہ ہم نے ایسے کوئی چیز چارج کرنی ہے، کوئی ایسا ہم نے کام کرنا ہے۔ میری شروع سے آپ تھا اچھی سوچ رکھی میں نے، اچھا لائن بن کے رہا، کافی لوگوں کی دباؤ کی وجہ سے آصف بلان شو چل رہا ہے، آصف بلان شو بولے اکیڈمی چل رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ جو انسٹیٹیوٹ پلیٹ فارم کھولا ہے یہ تو انشاءاللہ مزید ترقی کرے گا، آصف بلان شو میں بھی آن لائن اکیڈمی سے بھی زیادہ، کیونکہ یہ پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کے نام کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے، ہر فرد کے لیے، بچہ بچی اپنا ہر چیز کوٹیشن یہاں سینڈ کر سکتی ہے بڑی اوقات۔ ابھی بات کرتے ہیں میں نے جب پہلے پودے لیے 2024 کے لیے، اور میں نے 6 فروری 2024 کو میں نے بائی کیے پودے، اور 25 اور 7 فروری کو میرے گھر میں 6 فروری کو لے آیا، اور 7 فروری کو تو مجھے آرڈر ملا تو میں انہیں دے نہیں سکا، اور میں اس دن میں باہر لے کے گیا پودے اپنے جتنے میں تھے وہ لے کے گیا، میں پودے لگائے، کافی لوگوں نے تنگ کیا کہ اس کی فیملی دیکھو، اس کی کام دیکھو، اسے نہیں سوٹ کرتے، لوگوں کے تانے نہیں سنے، اگنور کیا، پر اس دن پتہ نہیں کیا ہوا اچانک سے مجھے آنا پڑا، تو دوسرے دن جنہوں نے مجھے آرڈر دیا ہوا تھا وہ 8 فروری کو آ گئے میرے گھر، اور میرے سے انہوں نے پودے باہی کیے، جو خود آدمی تھے وہ بھی میرے سے کرتے تھے، اور نے چھوٹی آئی سے شروع کیا، میک اٹ پتہ نہیں کب شروع انہوں نے کیا، پر ان کے کافی عرصے ہو گئے، ان کی فیس الگ ہے میری فیس الگ ہے، اور نے خیر بات کرنے کا مسئلہ دیکھے انہوں نے موٹیویٹ کیا، یعنی فیوچر وہ میرے ساتھ بھی اب دیکھیں گے، میں پھر ان کے بیان کر دوں گا ابھی جو ہم نے موٹیویشن لے کے چلنی ہے وہی لے کے چلنی ہے، فالتو باتیں آ جائیں وہ بھی موٹیویٹ نہیں ہے، پر آپ نے مین باتوں کو اپنے ذہن میں دبا کے رکھتے ہیں۔ ابھی بات کرنے وہ پودے میرے بکے، مجھے اتنی دل سے خوشی ہوئی آج تک میں نہیں ہوا، اور جس سے میرے پودے بھائی کی ساری دن بھوکا رہا، اور میں نے صبح روٹی کھا کے گیا تھا، صبح ناشتہ کر کے گیا تھا، اور دن کو میں لے بھی سکتا تھا، پر میرے ٹارگٹ تھا آج میں نے پودے بھائی کرنے، اس کے بعد کچھ چیز لنچ وغیرہ کرنے، ڈنر وغیرہ کرنا، پر کہنے کا مقصد ہے کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس میں آپ کو بھوک پیاس سہنی پڑتی ہے، میرے ساتھ میں ہی نہیں تھا، پودوں میں میری والدہ تھی جنہوں نے میرے ساتھ سہن دیا، یا بتا وہ نہ دیتی آصف بلان شوق ہوتا، پر وہ بڑے عرصے کے بعد ترقی کرتا، پر ان کے کرم کی وجہ سے ترقی ہوگی، اور وہ جب مجھے پیسے ملے مجھے دل تہ سے خوشی ہوئی، اور جنہوں نے لیے میرے سے انہوں نے بڑا موٹیویٹ کیا مجھے، بڑا حوصلہ افزائی کی، اور ابھی کافی میری ویڈیوز
کو وہ دیکھتے بھی ہیں اور ری پوسٹ بھی کرتے ہیں. بات کرنے کی یہ مقصد ہے کہ انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا. ان کے ان کے ان کے بیٹوں کو میں کروں گا کہ وہ کوئی بھی بزنس کھولے یا آسم شو میں آئے یا بزنس اس سے ڈیولپ کریں. ان فیوچر میں انہیں موٹیویٹ کروں گا, ان کے ساتھ رہوں گا. اصل بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ مجھے 30% بھی کیا. ایک طرف سے میں نے موٹیویشن کو دیکھا, 30 کو میں نے باہر نکال دیا, 30 میں سے گلوز کو اٹھا کے اپنے دماغ میں بٹھا دیا. یا میں نے انہیں ناممکن کرنا ہے اور اپنی بات کو حقیقت بدلنا ہے, وہ میں نے بدلا. آج 3 پلیٹ فارم کا فاؤنڈر ہوں اور CEO ہوں. میرے انڈر بھی ہیں ورک ہیں, میرے ابھی ٹیم ممبرس اس پر کام کر رہے ہیں. جتنا بھی ہے سب ایک بار بہت زیادہ محنت ہے. اور بات کرنے کا سب یہ مقصد تھا کہ میں ایک چھوٹے سے گاؤں سے پیدا ہوا اور چھوٹی سی گاؤں میں پیدا ہوا, اور پھر وہاں پر تو پھر تھوڑے بہت گھر میں آؤٹ شہر ساؤتھ سائڈ آ گیا جہاں پر نہیں آبادی تھی, ناممکن آبادی تھی. وہاں پر ہمارا گھر بنا اور وہاں پر میں نے اپنی پرورش کی. اور شروع سے شوق تھا کچھ بہت بڑا کچھ کرنے کا. اور میں نے جب صحیح کو پڑھنے شروع کیا اور پلانٹس کو پڑھنے شروع کیا, ساری انگلش میں ویڈیو ہوتی تھی. کلچر کو پڑھنے شروع کیا, ساری ہندی میں ویڈیو ہوتی تھی. اب میں اس ٹائم نہ بھی کر سکتا تھا, میں کہہ سکتا تھا میں اردو میں سننی ہے, پر ایک مجھے موٹیویٹ تھی اور میری ایک خواب تھا, میں نے اس کو تمہیں بدلا ہے. وہاں جو چیزیں ملتی ہیں ہم نے یہاں پر کم لاگت میں انہیں انٹروڈیوس کرانے اور اتنا ہی ریونیو جنریٹ کرنے کہ اپنے نظام چل جائے اور لوگ اس سے فائدے اٹھا سکیں. اور دیکھیں ہر بندہ لازم بات ہے, ہر بندہ ہر چیز فری آف کاسٹ نہیں کر سکتا. بعض چیزیں میں فری آف کاسٹ کرتا ہوں, میری ہوتی ہے لاگت پر میں اسے ہینڈل کر لیتا ہوں, کہیں نہ کہیں ریونیو کر کے ہینڈل ہو جاتا ہے. پر آن لائن آف لائن جب ہوا تو آپ کو ٹکٹس بائی کرنے پڑیں گے. اگر کوشش تو ہوگی ایسا ہو کہ میں خود ہی کر لوں, فری آف کاسٹ ہے. پر ہم نے ڈیجیٹل میں جانا ہے, کیوں نہیں سمجھ آ رہی, ہم نے ابھی اصل تو میری موٹیویشن ہوگی, پر ابھی میں کچھ سوال آپ سے کروں گا. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اپنی لائف میں, کیا آپ نے اپنی لائف میں سوچا ہے آپ کیوں پیدا ہوئے, آپ کی لائف کا مقصد کیا تھا, آپ کو کیوں خدا نے پیدا کیا, اور اس میں کیا رضات تھی, اور آپ کے پیرنٹس آپ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, کیا ان کے ڈریمس ہیں, آپ کی کیا ڈریم تھے بچپن میں, آپ کیا اس ٹریک میں چل رہے ہیں, کیا آپ نے اپنے آپ کو تبدیل کیا یا نہیں, کیا اپنی ذات اونچ نیچ کچھ تھی یا نہیں, کیا آپ نے موٹیویشن لے کے موٹیویٹ ہوئے یا نہیں, کیا آپ نے اپنے سوسائٹی کو کبھی ایکسپلین کیا آپ نے آپ کو جانچا, کیا اپنے آپ سے آپ نے گفتگو کی یا نہیں. سکسیسفل مین, اس بڑی بات آگئی, سکسیسفل مین, اور میں خود اپنے آپ سے بات کرتا ہوں. اگر آپ کو کوئی اپنے آپ سے بات کرتا ہوا نظر آئے, اسے اپریشیٹ کرنا. اپریشیٹ کبھی نہیں کرتے, اپنے دل میں اسے اپریشیٹ کرتے, اور اپنے آپ سے 10 منٹ اپنی زندگی میں کچھ باتیں کریں. اپنے آپ سے بات کرنا بڑی مشکل ہے, ہم نے کتنے سالوں کے ہو گئے اپنے آپ سے کبھی زیادہ بات نہیں. یقین مانے آج یہ بات لکھتے
आज ये स्पीच सुन के आपने अपनी लाइफ में आज 5 मिनट या 10 मिनट आपने अपने आप से बात करनी है और ऐसी गहरी सवाल करने अपने आप से जो कि आप एक्सपेक्ट लोगों से करते हैं वो अपने आप से करने हैं। और इसके अलावा क्या मैं सक्सेसफुल मैन बनने का ख्वाब है, क्या मैं नेगेटिव सोच है मेरी, क्या मैंने अभी तक अपने आप से बात किया है, क्या मैं एक अपने माँ बाप का एक सहारा हूँ, क्या मैंने सक्सेस नहीं होना, क्या मैंने ऐसी दुनिया में आकर और चले जाना है ना, ना मैंने दीन की खिदमत करनी है ना हमने एहसानों की खिदमत करनी है। मेरा कोई मकसद नहीं है, मेरा क्यों कोई भी गोल नहीं है। खुदा ने मुझे वैसे ही पैदा किया है। ये सवाल अपने आप की जात से तो करें। आप अपने आप को टाइम नहीं देते, असल मोटिवेशन तब आएगी अपने आप को टाइम दें। लोगों को हम टाइम उनका हम मांगते रहते हैं, वो आप सक्सेसफुल मैन आप देखना वो फालतू बात कभी किसी के साथ नहीं करेगा, वो जहनीत को पढ़ने वाला होगा। जो करता है नेगेटिव होगा उसके साथ सक्सेसफुल मैन नहीं बैठेगा। जो पॉजिटिव होगा, मैं कहता हूँ आप अपनी सोच को पॉजिटिव बनाया, खुदा खुद रास्ते खोलता है, ऑटोमेटिक लोग आपके साथ जुड़ते हैं, नई नेगेटिव वाइब्स चली जाती है, नया इल्म आ जाता है और नई बातें सीखने के लिए मिलती है। आज तक ही न करें कि आज से बाद में 10 मिनट अपने आप को देना शुरू करने हैं। 10 मिनट भी यकीन माने आप रोजाना अपने आप को दे दे, 10 मिनट भी बड़े कीमती हैं अपनी लाइफ में। और इसके अलावा ये ना सोचे कोई क्या कह रहा है, कोई भी चीज खोल दे अभी, ये ना सोचे मेरी एज है या नहीं, ये सोचे कि मैंने जवान होकर सक्सेसफुल मैन बनना है, जवान होकर अपनी फैमिली को भरपूर टाइम देना है, भरपूर टाइम देना है। अभी आप 12 साल के हो, 14 साल के हो, 9 साल के हो, लग जाओ अपने करियर में। आपने यूट्यूब बनना है, बनो यूट्यूबर। आपने ब्लॉगिंग करनी है, आप ब्लॉगिंग करो। आपने प्रोडक्शन हाउस बनाने, आप अभी से छोटे लेवल पर आप अपने प्रोडक्शन हाउस बनाओ, लोगो अच्छे बनाओ। टेक्नोलॉजी में कदम रखना है, आज टेक्नोलॉजी में पढ़ना, इंटरेस्ट रखने लग जाओ। यकीन मानो एक कतरे से दरिया बनता है, आप भी कहते हो मैं भी कहता हूँ, पर आखिर में क्या हम क्या कहते हैं, हमने अपनी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके फिर कुछ करना है, क्या वो हम 6 साल पहले नहीं कर सकते, 8वीं में नहीं कर सकते। 8वीं के बाद जितनी यूनिवर्सिटी तक है उसमें हम 10 2 आवर्स नहीं दे सकते, 2 घंटे अपनी रात को नहीं दे सकते। हमने अगर बिजनेस करना है, क्या वो बिजनेस खोल के हम 2 घंटे नहीं दे सकते, ऑनलाइन नहीं कर सकते, ऑफलाइन चले आप नहीं कर सकते, आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आप अभी स्कूल की लाइफ गुजार रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी की लाइफ गुजार रहे हैं, आप नहीं कर सकते, आप आपसे कुरान बनने चलते, आप नहीं कर सकते, आपको मदरसे में सपोर्ट कम टाइम मिलता है, आप ये नहीं कर सकते, आप 2 घंटे ऑनलाइन दे सकते हो, आप यूट्यूब से गोल कर सकते हो, इंस्टाग्राम से गोल कर सकते हो, हर चीज आप देख सकते हो, हर चीज आप कर सकते हो। अपनी आप जात के लिए 10 मिनट और अपने करियर के लिए 2 घंटे आप नहीं दे सकते, इससे ज्यादा में आप ध्यान दें, आप इतने ही दें, इससे ज्यादा अरसे के बाद बढ़ाएं। और मैं ये नहीं कहता कि आज आपने यूट्यूब छोड़ दो बंद, यार हर चीज को लेके चलो, आप अपनी लाइफ में से नेगेटिव चीजें निकाल दो,
नेगेटिव वाइब निकाल दो। आप यूट्यूब चलाओ, टिकटॉक चलाओ, इंस्टाग्राम चलाओ, उससे कोई भी आपको लाइफ में नुकसान नहीं। जब आपकी जहनीत ऑटोमेटिक नेगेटिव होगी, यूट्यूब पर भी नेगेटिव बातें आएंगी। ये आप कभी सोच के ऑब्जर्व करना है। जिस दिन आपने पॉजिटिव सोची, पॉजिटिव वाइब लाई, ऑटोमेटिक आप आ जाएंगे। ऑटोमेटिक आपकी वही वीडियोस आएंगी जो कि आप सुनना चाहते हैं। ऐसा होता है मेरे साथ भी, आप लोगों के साथ भी। और आज आपने बुक राइटर बनना है, आज से बुक्स को पढ़नी शुरू कर दो। और अगर आपने बिजनेस करना है, अभी इस मेन पॉइंट बात सुनना, हर चीज में नुक्स ढूंढने वाला न काबिल नहीं है, और वो काबिल इंसान। ये भला क्यों, मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? देखो एक करियर है, जैसे एग्रीकल्चर ही करियर है, लाखों मिलियंस लोग जुड़े हैं। पाकिस्तान में लाखों लोग हैं। अब मैं तरक्की करते हुए बड़ा टाइम लगेगा, मुझे नई चीजें करनी पड़ेंगी, उसमें मेरे डेस्टिनी, मुझे घूमना पड़ेगा, उसमें नुक्स निकालने पड़ेंगे। उस सुबह मैं वर्क कर रहा हूँ, मैं तब कामयाब हूँगा। हर चीज में से नुक्स निकालो, उस पर आप उस नुक्स जो नुक्स निकला हो उस पर आप काम करना शुरू करो अपने करियर में। ऑटोमेटिक आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिलेगी। और यकीन बहुत बड़ी चीज है, अपने आप की जात पर और ऊपर खुदा की जात पर यकीन रखना कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये नेगेटिव नहीं है, और मेरा खुदा ऑटोमेटिक मुझे रास्ते देगा, अता करेगा, और मेरी पब्लिक बनेगी, और मेरे लोग मेरे साथ इन टच होंगे, और मेरी नेटवर्क ज्यादा अपग्रेड होगी, और मेरे साथ लोग रेवेन्यू मेरे जनरेट होंगे। और जितनी पहले हमेशा बड़ा ख्वाब देखने वाला कामयाब होता है। बड़ा ख्वाब देखो, उसको हकीकत में बदलो। ये जो हम लोग कहते हैं ख्वाब नहीं देखने चाहिए, वैसे ख्वाब देखो, वो जुनूनी ख्वाब देखोगे आप में, आपकी जिसमें हकत पैदा हो, वो ख्वाब देखोगे भाई। अब उठिए, आप सोचो भाई आज मैंने ये काम करना है तो करना है। आप में जुनूनी पैदा हो जाए, ऐसी जुनूनी के अब वो जुनून आपको एक सक्सेसफुल मैन में तब्दील कर दे। और ये मुझे लगता है बहुत बड़ी सी बीज हो चुकी है, पर इस बीज को सुनकर हर किसी बंदे की लाइफ चेंज होगी, और इंशाल्लाह लाइफ चेंज होगी, और वो अपने बिल्डिंग मजबूत करेगा। और आज सही करे कि आज के बाद मेरे 10 मिनट अपने आप की जात को दे रहे हैं, 10 मिनट अपने आप करियर को दे रहे हैं, यकीन माने आप 2026 में सक्सेसफुल मैन बन के निकलेंगे। अभी है महीना आपके लिए कीमती है, वो 10 मिनट को ज़ाया न करे। अगर 10 मिनट भी आप देते और नहीं दे, 1 घंटे का फायदा नहीं, 1 घंटे में आप 10 मिनट मोबाइल यूज कर तो यहाँ होते देखते हो। अगर 10 मिनट भी है, फोकस है, भूल जाए दुनिया जहाँ गई है 10 मिनट के लिए, आप भूल जाए आप अपने 10 मिनट और 2 घंटों को भूल जाएंगे। अभी हमने किसी को टाइम देना है, पहले हर किसी को टाइम दे दो, फिर आपने करियर को देना। और 2 घंटे ऐसे रखो कि जिसमें खामोशी हो, और आपको कोई सोच रहा है, सिर्फ सोच है किसके बाद मैंने आगे क्या टारगेट रखना है, अभी मैंने इसमें क्या अप्रूवमेंट लानी है, क्या नई चीजें लानी है, क्या ये मैं कर सकता हूँ, ये सवाल नहीं करना। हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरे में इतनी हिम्मत है। अगर आप नहीं लफ्ज यूज करेंगे ऑटोमेटिक आप नहीं कर सकते। हाँ मैं इसके काबिल हूँ, मैं काबिल नहीं हूँ, मैं इसके काबिल हूँ, मैं कर सकता हूँ। ये जोश जब भरोगे, सक्सेसफुल मैन बन जाओ। हार्ट की हर बंदे की लाइफ में हार्ट चलती है, हर बंदे की हालत, कोई बंदा सक्सेस वैसे ही नहीं पैदा होता, हर बंदे की हार्ट है।
नबियों की हिस्ट्रियों को पढ़ो, उसमें हादिस नहीं है। आप वलियों के हिस्ट्रियों को पढ़ो, उसमें हादिस है। आप पीपल्स की हिस्ट्री को पढ़े, उसमें हादिस है। हर जात हर जात के बंदे में हादिस है। यही नहीं कि अगर वो नबी है उसकी लाइफ में मुश्किलें हैं, वली की लाइफ आसान है, वली की मुश्किल है, और लोगों की आसान है। हर बंदे की लाइफ मुश्किल है। हर बंदे की कायनात में जितनी चीजें हैं उसकी हर चीज मुश्किल है। हर चीज यहाँ पर मुश्किल है, पर आपने हर चीज को इजी लेना है। हर दिन मुश्किल होता है, और वो जब कब मुश्किल होता है जब आप कहते हो आज मुश्किल है। आज नहीं, मुश्किल आसान है मेरे लिए। मेरे तो ये रूटीन है, ये तो मेरी लाइफ में चलती रहती है। मैं अब सिर्फ कर लेता हूँ, मैं तो सिर्फ फोकस मार। आपने आगे जो पत्थर गिरे हैं उनको अपना ठोकर नहीं गिराना, उन्हें आप अपना पुल बना दे या अपनी सीढ़ी बना दे, उसे जान के दूसरे रास्ते में तब्दील हो जाए, उस रास्ते को गुड कर दे। जितनी बातें हैं ये आपने अपने अपने साथ में बांध के रख लें और जहन नशीन कर लें, और अपने करियर को टाइम दीजिए। आपका करियर बहुत अपने लिए खास है। अपनी जिंदगी को खास बनाए, न के ना खास बनाए। अपने टाइम को इम्पोर्टेंट बनाए, अपनी जात को इम्पोर्टेंट बनाए। और इस बीच करने का मकसद है कि आप अकल छू जाए और आप एक मोटिवेशन मैन बन जाए और एक स्ट्रॉन्ग मैन बन जाए, ताकि आप एक जुनूनी मैन बन जाए। जो भी ख्वाब आप तारी करे और उसको हकीकत में बदले। सोसाइटी को नहीं देखना, सोसाइटी को चेंज करना है, अपने आप जात को चेंज करना है। नेगेटिव दिमाग को चेंज करें, मोटिवेशन ऑटोमेटिक आएगी, आपको जुनून ऑटोमेटिक आएंगे, आप ऑटोमेटिक सोचने लग जाओगे, ऑटोमेटिक बड़े कदम रखने लग जाओगे। और ये जितनी स्पीच करने का निचोड़ है कि आप अपने दिमाग को चेंज करो, अपनी सोसाइटी को चेंज आप तभी कर सकते हो। आगे अपने आप की सोचने की पावर को चेंज करो। नेगेटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो, मजीद पॉजिटिव पर आप स्ट्रॉन्ग हो जाओ। और ये जितनी भी बातें अपने आप से सवाल जवाब आज घर आज इस स्पीच को सुनने के बाद आप अपने आप से ये सवाल कीजिएगा। अगर थोड़ी ही मिस्टेक हुई, अपने भाई को माफ कीजिएगा। और और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि पाकिस्तान तो तरक्की याफ्ता पहले भी था, अब भी होगा। और मेरी मोटिवेशन स्पीच से लाखों आदमी का लाइफ चेंज होगी। और इस स्पीच को पूरा कंप्लीट सुनने के लिए और इससी चीज़ें अपलोड करने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक फॉर ऑल पीपल। एंड मुझे यकीन है कि आप लोग एक सक्सेसफुल मैन हो। सोसाइटी को आपने चेंज करना है और आपने एक जुनूनी मैन बनना है। और जितनी बातें आपने तेरे दिल से बांधनी है, आपसे अपने आप से ये सवाल करने हैं रोजाना। हर ये 2 और 10 मिनट, 2 घंटे और 10 मिनट आपके लिए कीमती हो जाएंगे। हाँ, बस आपने एक सक्सेसफुल मैन बनना है, अभी से बनना है। आपकी लाइफ आपकी एज को लिमिट करती है। आपने अभी अपनी जात से तो ये वादा करना है कि आज से मैं एक पावर मैन हूँ। और जितनी भी बातें आपने इस माइंड में रखनी है। चल शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।